So, hello everyone, how are you? I hope that you all are good, you all are safe wherever you people are. Is it so? चलो सेफ रहने का ज़रूरत है. You people are studying at home. Is it so? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So, in the last video, in the last class, we were discussing about the techniques of separation of the different components of a mixture. Is it so? So we have seen some techniques. We have seen evaporation. We have discussed about your centrifugation. We have discussed about your miscible liquids, water immiscible liquids, water miscible liquids. What is the process separating funnel? What is the principle of this? Okay. Chalo, ठीक है. Now today, let us focus on some more examples. ठीक है. Example number 5, I think. Yes. So the question is that how will you separate a mixture of salt and ammonium chloride? Mixture of salt and ammonium chloride. Is it so? So salt means NaCl and ammonium chloride is NH4Cl. So there is a mixture of NaCl and NH4Cl. Now you will have to see one thing, that these two are solid. Okay, so you can see here that these two components are solid components. Means this is an example of what? This is an example of solid mixture. Is it so? This is an example of solid mixture. ठीक है? Okay. अभी the question arises कि we have read about that how to separate liquid, है ना? We have seen about the liquid mixture ना, immiscible liquid. In further we will see the liquid mixture which are miscible liquids, है ना? Okay. And we have seen about the solid liquid mixture by evaporation, volatile and non-volatile component. Now this is a different type of mixture. That this is a solid mixture. अभी the question arises कि okay ठीक है ना? तो how will you separate? किस तरीके से इसको तुम सेपरेट करोगे, है ना? किस तरीके से इसको तुम सेपरेट करोगे? ठीक है, चलो. तो इसको सेपरेट करने के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा? अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तो this mixture of salt and ammonium chloride will be separated by the process of sublimation. ठीक है. तो अभी द क्वेश्चन अराइजेस कि ओके सर ठीक है, हम लोग तो लर्न कर लेंगे कि ये एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में हम लोग सब्लिमेशन यूज करेंगे, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड नो? बताओ. द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड नो इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कि व्हाई विल वी यूज सब्लिमेशन, है ना? दिस इज द मेन क्वेश्चन. हमेशा साइंस पढ़ते वक्त यही होना चाहिए क्वेश्चन, व्हाई. हमेशा तुम्हारे वाई का आंसर मिलते रहना चाहिए. अगर मिल रहा है तो समझो कि तुम सही से पढ़ रहे हो, तुम्हारा टीचर तुमको सही से पढ़ा रहा है. अगर तुम्हारे सारे मैक्सिमम वाइज का जवाब जो है तुमको अगर मिल रहा है तो तुम समझो कि तुम सही से पढ़ रहे हो और तुम्हारा टीचर तुमको सही से पढ़ा रहा है. लेकिन अगर बहुत सारा वाई है तुम्हारे दिमाग में और उसका आंसर तुमको नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारा टीचर भी तुमको हेल्प नहीं कर पा रहा है उस वाई का आंसर ढूंढने में, तब समझो कि या तो तुम कहीं कमी कर रहे हो, है ना? वेदर यू आर लैकिंग or your teacher is not paying full attention, है ना? This is all about science. Science is all about your thinking. तुम सारे साइंटिफिक चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में अपने थिंकिंग के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, यही है साइंस. समझ में आ रहा है? बहुत कुछ है साइंस है, बहुत कुछ है. अभी तो तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो. अभी 10 में आओगे तभी भी बहुत कुछ नहीं पढ़ोगे. 11 में आओ, 12 में आओ, तब पता चलेगा साइंस क्या चीज़ है ना? तो बहुत कुछ है. देयर इज अ लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस. चलो, नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स सेम कि सर व्हाट इज सब्लिमेशन, है ना? तो सब्लिमेशन, द फर्स्ट थिंग, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सॉलिड मिक्सचर. फर्स्ट थिंग लिख लो. चलो, सेकेंड थिंग कि सब्लिमेशन हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे पास दोनों सॉलिड में से कोई एक सॉलिड जो है वो सब्लिमेबल सॉलिड होगा. कैसा सॉलिड होगा? कि between these two solids one must be a sublimable
सॉलिड, है ना. द क्वेश्चन में अराइज दैट सर व्हाट इज अ सब्लिमेबल सॉलिड, है ना. तो आई थिंक दैट आई हैव डिस्कस दिस थिंग विथ यू. I have discussed the process sublimation, condensation, evaporation, melting, boiling, freezing, solidification. Is it so? So sublimation क्या process था? Sublimation is a process in which the solid particles directly changes into vapor without changing into liquid form. तो अगर ऐसा कोई भी solid है जो कि sublimation होता है जिसका, जैसे कौन कौन सा solid है तुमको पता है? कौन कौन से solid का sublimation होता है? मैं तुमको बताता हूँ. देखो, एक तो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, दिस इज अ सब्लिमेबल सॉलिड. नेक्स्ट है हमारा कैम्फर, मैंने बताया था. नेक्स्ट है हमारा नैप्थलीन, नेक्स्ट है हमारा एंथ्रासीन. तो दीज आर माई सम सब्लिमेबल सॉलिड, कि इन सब सॉलिड्स का सब्लिमेशन होता है ना. हीट करोगे तो ये सारा सॉलिड फट से जो है एकदम सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में फट से कूदेगा, भाग जाएगा. ठीक है. तो अगर ऐसा कोई भी सॉलिड मेरे मिक्सचर में दिया हुआ है विच इज अ सब्लिमेबल सॉलिड, तब हम लोग यूज करेंगे प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो अब यहाँ पे आ जाओ, कंसेप्ट देख लिए ना. अब आओ, अब NaCl और NH4Cl इन दोनों में ये है मेरे पास सब्लिमेबल सॉलिड, तो वी विल यूज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. मीन्स वी विल हीट इट. When we will heat, then this ammonium chloride will be evaporated. Is it so? And this NaCl will be remained in the beaker. अच्छा, अभी the question arises. अभी एक और क्वेश्चन अराइज होता है. बहुत क्वेश्चन है बाबू, बहुत क्वेश्चन है कि सर the ammonium chloride, the vapors of the ammonium chloride will be evaporated, है ना. इवापोरेट होके सपोज निकल गया और फिर एटमॉस्फेयर में चला गया और मुझे NaCl मिल गया. लेकिन सर अगर ऐसा हो, मीन्स अगर हम लोग ये चाहें, है ना सर, इफ वी वांट दैट कि वी विल नॉट वेस्ट द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब हम लोग अमोनियम क्लोराइड के वेपर को एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देंगे. मैं चाहता हूं कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर को मैं स्टोर करूं, है ना. एंड फिर उस वेपर को, चूंकि ये सब्लिमेबल है तो वेपर फिर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. इज इट सो? तो मैं उस वेपर को जो है वो फिर से मैं उस वेपर को क्या करूं? सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं. ये मैं चाहता हूं. तब मैं क्या करूं सर, है ना. तब आई विल टेल यू कि तब तुमको एक सेटअप करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप करना पड़ेगा. कैसा होना चाहिए सेटअप? ये तुम्हारा है स्टैंड. इस स्टैंड पे तुम एक डिश रखोगे, है ना, और इस डिश के ऊपर तुम क्या रखोगे? एक फनल रखोगे, और इस फनल के ऊपर तुम कॉटन बॉल्स लगा दोगे, है ना. ये है तुम्हारा स्टैंड. यहाँ देखो, यहाँ सी हियर, दिस इज योर स्टैंड. स्टैंड के ऊपर एक डिश के ऊपर एक फनल के ऊपर एक कॉटन बॉल. ठीक है. अब यहां पे तुम्हारा मिक्सचर है, दिस इज योर मिक्सचर. यू आर हीटिंग इट. तो यहाँ पे जो सब्लिमेबल सॉलिड है वो इवापोरेट होगा, और जब वो यहाँ आएगा तो वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा, तो यहाँ पे कहीं वो रुक जाएगा, है ना. और जब हम लोग देखेंगे कि सारा का सारा वेपराइज हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस फनल को रिमूव कर लेंगे. तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा? व्हाट विल बी द रेसिड्यू? हियर NaCl विल बी लेफ्ट, एंड द लेफ्ट, और जो है इसमें इस फनल में मेरे पास क्या रहेगा? इस पूरे फनल में मेरे पास रहेगा अमोनियम क्लोराइड. इस अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे? कूल करेंगे, और फिर हम लोग को अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड मिल जाएगा. तो हमको यहाँ से अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड भी मिल गया और हमको NaCl भी मिल गया, और इस तरीके से हम लोग दोनों ही सॉलिड्स को वापस जो है वो पा सकते हैं. वी कैन गेट बैक बोथ द सॉलिड्स विदाउट द लॉस. इज इट सो? तो ये हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? स्टैंड लेना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा. डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल, उल्टा करके फनल, और फनल का माउथ में जो कॉटन बॉल्स डालना पड़ेगा. ताकि क्यों डालेंगे कॉटन बॉल्स? सो दैट द वेपर्स विच आर कमिंग आउट, वो वेपर्स एस्केप ना कर जाए, भाग ना जाए,
है ना, क्योंकि इसी वेपर्स को अलग करेंगे और फिर उसको हम कूल करेंगे, तो दैट वेपर विल बी कन्वर्टेड टू अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, and in this way we can separate the both the solids and we can get back both the solids in pure form. Understood? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुमको ये सब एग्जांपल्स भी याद करना पड़ेगा सब्लिमेबल सॉलिड का, ठीक है। सब कुछ लिखो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग लिखो। मैं कुछ भी एक भी चीज़ जो है गलत नहीं करवाता, है ना, ऐसा नहीं, यूजलेस कुछ नहीं करवाता मैं, इतना याद रखना। और मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ को अगर तुम लोग सही से नहीं लेते हो तो ये दिस थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर एग्जाम्स। तुमको दिखेगा ये चीज़ कि अरे ये सर करवाए थे, आहा मैं नहीं लिखा, मैं नहीं नोट किया, मैं नहीं समझा ठीक से, नहीं हो रहा है मेरे से, है ना। तो ये चीज़ तुम बाद में इस चीज़ का तुम अफसोस करो, उससे अच्छा तुम पहले से ही पढ़ो अच्छे से, है ना, ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, है ना।